ये मौका दिया कि आपसे बात करने का मुझे मौका मिला है। अ, आरोग्य भारती एक ऐसा संगठन है आरएसएस का जो प्रिवेंटिव हेल्थ में हाँ बिहेव करता है। और हाँ और उसके साथ साथ ही एकेडमिक्स में भी काफी इंटरेस्ट रखता है। भारतीय चिकित्सा पद्धति जैसे आयुर्वेदा है, तो उसका प्रसार और प्रचार करने के लिए आरोग्य भारती ये संगठन पूरे देश भर में कार्य करता है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि एक ऐसा एकेडमिक वेबिनार पश्चिम महाराष्ट्र आरोग्य भारती की तरफ से शुरू है, जो कि आयुर्वेदा के जो स्टूडेंट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, और उनको सिखाने के लिए, उनको मालूम होने के लिए किया जाता है। तो मैं इस कार्य के लिए पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत आरोग्य भारती और सभी विद्यार्थी और जो प्राध्यापक सब जो इसमें इन्वॉल्व है, उनको सभी को बधाई देता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। ये एक ऐसा अच्छा महान कार्य उन्होंने शुरू किया है। आप सब जानते हैं कि सीएमई कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ एनी स्ट्रीम इन द मेडिकल फील्ड, लेट इट बी एलोपैथी, आयुर्वेदा और होम्योपैथी, because learning is a lifelong process. Everybody is a student till his last breath, and one has to be there because no one is perfect, and we try to become perfect by learning through the experience, learning through the such CMEs or webinars, and our guide teachers, they teach us various things which we do not learn from the books. So I congratulate once again all the organizers of this CME or national webinar, and especially Dr. Santosh Ji Katne for giving me opportunity to interact with you. I wish all the best for this webinar, and I congratulate the today's speaker, Dr. Sushil Kumar Parashar, who is going to highlight you on the very physiological pathways for the body in Ayurveda. I congratulate him. I wish all the best for this webinar, and thank once again the organizers for inviting me and giving me chance to speak. And I declare that this webinar is open for the discussion now. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। आज के हमारे कार्यक्रम में वैद्य संतोष जी गटने सर भी उपस्थित है। सर सचिव आरोग्य भारती पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत महाराष्ट्र प्रांत महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक के सीनेट सदस्य तथा स्थायी समिति के सदस्य है। सर पुणे स्थित एक आयुर्वेद वैद्य होने के साथ ही औषधि निर्माता भी है। आज के कार्यक्रम अच्छा अच्छा, तो फिर ये इंदौर जाके फिर इनकी अलग अलग टाइम पे ट्रेन है क्या? फिर कितने बजे से? आज के कार्यक्रम का विषय है रोल ऑफ स्त्रोतस इन फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी। आज के हमारे वक्ता है डॉक्टर सुनील कुमार पाराशर सर। सर has completed his MD in Kriya Sharir from PTKLS Government Ayurved College, Bhopal in 2019. Sir is currently working as a HOD Kriya Sharir at Kalavati Ayurvedic Medical College, Kasganj. Sir has published more than 10 research articles in various journals. Also, Sir has published one book. He is second winner of national level PG essay competitions organized by Vishwa Ayurved Parishad in 2017. Sir has worked with CCRS in NPC-DCS in Bhilwara in 2016. Also, Sir has worked with MP Government Ayurvedic Community Officer in Morena 2020. Sir has served COVID duty with SDM Bhopal in 2020. I request Dr. Sunil Kumar sir to start his lecture. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Myself, Dr. Sunil Parasar, HOD Kriyasari Department from Kalavati Ayurved Medical College, Kasgan. A very good evening on the occasion of 77th Republic Day. I am very thankful to Arogya Bharati Paschim Maharashtra Prant
for giving me such wonderful opportunity to for on a national level platform. Today, I am here to deliver my thought or knowledge on role of Srotas in physiology of human body. So let's start. To be an Ayurveda scholar, Srota is a very familiar term to us as we studied in Kriyasari, Rachnasari, even in pathology, Rognidan, where disease is classified according to the Srotas, those dosha samuchna is also occurs in Srotas. But some basic questions, queries related to the concept of Srotas like is Ayurveda practitioner understand Srotas in day-to-day practice, or can we correlate Srotas with modern science, or role of Srotas in Kriya Sarir is only up to channels or conduct or passes dhatu like or something else. Concept of Srotas means what? Is there any swarup of Srotas in our mind? These are some basic queries related to the concept of Srotas, like what is Srotas? Are the Srotas merely passive conducts, or do they possess distinct structural and functional characteristics? How do Srotas facilitate the flow of substance? Role of Srotas in being healthy or unhealthy? How important is it for an Ayurvedic practitioner to understand Srotas in day-to-day practice? These are some basic queries. If we have a swarup in our mind of, then only we can understand the Srotas and how it can work with in normal physiology. So first of all, we start with Srota Swarup. आचार्य चरक ने विमान स्थान अध्याय 5 में स्रोतस के बारे में जो है वर्णन किया है, जबकि निरुक्ति उन्होंने चरक सूत्र अध्याय 30/12 में दी हुई है। जैसे आप देखेंगे कि धमानात धमन्य, शबड़ात श्रोतांसी एंड सरड़ात सिरा, ये पूरा जो निरुक्ति है जिसमें धमनी की भी निरुक्ति दी हुई है, श्रोतस की भी निरुक्ति दी है तथा सिरा की भी निरुक्ति दी है, और ये तीनों की निरुक्तियां सूत्र स्थान में ही उन्होंने दी। लेकिन पूरे स्रोतस का डिटेल्ड वर्णन उन्होंने विमान स्थान में किया। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये चीज पॉइंट आउट है कि यहाँ ये स्रोतस, धमनी और सिरा, इन तीनों में कुछ डिफरेंस क्लियर करना चाहते थे, क्योंकि धमनी और सिरा का जो नेटवर्क है, जो जाल है, वो भी पूरी बॉडी में उसी प्रकार से जो है पूरा बिछा हुआ है जिस प्रकार से स्रोतस। बट फर्दर एक टर्म स्रोतसा मेव समुदयम पुरुषम, ये उक्ति केवल स्रोतस के लिए आती है, ये धमनी और जो है सिरा के लिए नहीं आती है। जहां हम देखते हैं कि स्रोतस के लिए जो है अलग से जो इन्होंने बोला कि स्रोतसों का समूह ही पुरुष है, या जो पूरी ह्यूमन बॉडी है वो एग्रीगेशन ऑफ स्रोतस है। ये पूरा अगर हम देखें तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्रोतस हैं उनका एग्रीगेशन ही ह्यूमन बॉडी है, ऐसा इन्होंने बोला। बट इस तरह की चीज जो है वो धमनी के लिए या फिर जो है सिरा के लिए जो है डिटेल नहीं बताया गया या वर्णन नहीं किया गया।
तो ये एक मेन फैक्ट है। और वहीं हम आचार्य सुश्रुत को देखें तो आचार्य सुश्रुत ने जो है क्लियरली जो है वो सोतस के अंदर सिरा और धमनी को नहीं रखा है। उन्होंने सीधा सीधा सिरा धमनी विवर्जिता करके जो है स्रोतस से धमनी और सिरा को अलग कर दिया है। परंतु आचार्य चरक ने सिरा और धमनी को भी स्रोतस के अंतर्गत माना है। यहां पर अगर हम देखें, द वर्ड सोतस इज डायरेक्ट फ्रॉम संस्कृत रूट शुगतायु, दैट मीन्स मूविंग, फिल्टरिंग, फ्लोइंग, लीकिंग, secreting, oozing out. These are the some synonyms or just like meanings. So finally we can say the structure through which nutrient exchange या श्रवणम occurs by a filter, leaking or secreting, that all are sotas. These are some synonyms of srotas which gives by Acharya Charak, like Srotansi, Sira, Dhamanya, Rasanya, Rasvaini, Panthana, Marga, Sarir Chidradi, Samvrat, Asamvrat, Asay, Niket, Sarir Dhatu, Avkasanam. These are various synonyms of Srotas. In a modern साइंस या अगर हम कोरिलेशन करना चाहें तो हम देखते हैं कि सिरा जस्ट लाइक वेन, धमनी, आर्टरीज, ये कुछ एक कोरिलेशन जो है ये साइड में दिया हुआ है जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर बेसिक नॉलेज से थोड़ा सा हटके कुछ एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के एक प्रयास है कि कुछ एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो। हालांकि जो अभी ये पूरा लेक्चर देख रहे होंगे, जो पूरा सेमिनार देख रहे होंगे, इसमें फर्स्ट प्रोफ के स्टूडेंट्स भी होंगे, बीएमएस कंप्लीशन किया होगा वो स्टूडेंट भी होंगे, जो प्रैक्टिशनर हैं वो भी इसको देख रहे होंगे। तो सभी के लिए कहीं ना कहीं ये है कि जो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जो है डेवलप हो कि स्रोतस मीन्स क्या। आज हम इस पे ज्यादा बात करेंगे बजाय इसके कि स्रोतस की डिटेलिंग लाइक जस्ट टाइप, सिनोनिम्स वगैरह वगैरह या इनके मूल वगैरह, हम इनके कॉन्सेप्ट पे ज्यादा बात करेंगे। जैसे अभी मैंने कहा कि स्रोतस में हम जो है वो धमनी और सिरा को रखें या नहीं रखें, या आचार्य सुश्रुत ने इसको क्यों नहीं रखा और आचार्य चरक ने इसको क्यों रखा। तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, जो एक कॉमन फंक्शन है स्रोतस का और सिरा और धमनी का, इसीलिए आचार्य चरक ने उस ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन को देखते हुए उसको इंक्लूड किया स्रोतस में। बट आचार्य सुश्रुत ने जो है वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन को ध्यान में नहीं रखा, उन्होंने कुछ और चीजों को भी ध्यान में रखा, क्योंकि स्रोतस का मेन फंक्शन केवल ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, स्रोतस का फंक्शन इससे कहीं ज्यादा है। जैसे एक हम फंक्शन का ये एक फंक्शन का जो है स्लाइड है, इसमें आप देख रहे हैं कि सर्वे ही भावा पुरुषे नान्तरेण स्रोतांश अभिनिवृंतते क्षयम वा आप्य अभिगच्छन्ति। यानी कि सभी भाव जो है वो स्रोतस के बिना ना तो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, ना उनका क्षय हो सकता है, ना उनकी वृद्धि हो सकती है। यानी कि जितने भी मूर्तिमंत भाव हैं वो सभी मूर्तिमंत भाव अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपने क्षय के लिए, अपनी वृद्धि के लिए ये डिपेंड हैं पूरी तरह से स्रोतस के ऊपर। तो जहां सिरा और धमनी का मेन जो फंक्शन था वो केवल क्या था कि ट्रांसपोर्टेशन, बट यहाँ पर थोड़ा सा इसका फंक्शन कहीं ज्यादा विशद है, कहीं ज्यादा विशाल है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन मेटाबॉलिज्म ऑफ पोष्य धातु अकर इन स्रोतस टिश्यू स्पेसिफिक सेल्स, दिस रेफर टू टिश्यू मेटाबॉलिज्म, ईच स्रोतस प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू देयर रेस्पेक्टिव धातु ओनली। यहाँ पर एक चीज और जो है आती है, यहाँ एक चरक चिकित्सा अध्याय 8 का एक श्लोक दिया हुआ है जहां पर आप देख रहे हैं
कि स्रोतस जो है वो न्यूट्रिशन का वर्क भी कर रहा है, साथ में स्रोतस जो है वो किस प्रकार से क्षय की वजह से और ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर राजअक्षमा डिसीज को उत्पन्न कर रहा है। तो ये हमको एक आइडिया देता है कि ये सिर्फ जो है केवल ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, यहाँ पर स्रोतस का कार्य जो है वो दोष धातु मल ये सभी जो है वो स्रोतस पे डिपेंडेंट है, फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इवन डिस्ट्रक्शन, इन सभी के लिए। वापस आते हैं अपन। तो ये स्रोतस और जो सिरा और धमनी थे, इनके अंदर ये एक बेसिक डिफरेंस है कि ये सभी जो है वो स्रोतस ट्रांसपोर्टेशन से थोड़ा सा ज्यादा है। देन फिर हम बात करते हैं आचार्य चरक के एक श्लोक की, जिसमें उन्होंने कहा है कि यावंत पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत एवा अस्मिन स्रोतसाम प्रकार विशेषा। अर्थात शरीर में पुरुष के ह्यूमन बॉडी में हमें जितने भी भाव, मूर्तिमंत भाव दिखाई देते हैं, उतने ही प्रकार के स्रोत शरीर में होते हैं। आगे इसी में कहते हैं कि सर्वे ही भावा पुरुषे नान्तरे श्रोतान से अभिनिवृत्ते क्षयम वाप्य अभिगच्छन्ति। ये चरक विमान स्थान 5 का जो है वो श्लोक है, जिसके अंदर सीधा ये बताया गया है कि पुरुष में स्रोतस कितने प्रकार के स्रोतस होते हैं। वहीं पर यह बताया कि जितने भी मूर्तिमंत भाव, मूर्तिमंत भाव से क्या तात्पर्य है, वो नीचे चक्रपाणी की टीका दी है कि मूर्तिमंत इति असर्वगत द्रव्य परिणाम परिमाणवंत। अर्थात सर्वगत नहीं है, मूर्ति का मतलब है जिसका एक स्पेसिफिक शेप हो, एक साइज हो। ऐसे भाव, ऐसे जितने भी भाव हैं शरीर भाव, जिनका एक स्पेसिफिक शेप है और स्पेसिफिक साइज है, उनके लिए सभी के लिए जो है अलग अलग स्रोतस वर्णित है या होते हैं। आगे इसमें देखते हैं हम कि इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने बोला कि अपि च के स्रोतसा मेव समुदयम पुरुषम इच्छन्ति। यानी कि स्रोतसों का समूह ही, एग्रीगेशन ही पुरुष है या ह्यूमन बॉडी है। आगे इसमें कहते हैं कि किस रीजन से, तो वो कहते हैं अति बहुत्ववाद। यानी कि ये इतने ज्यादा हैं, इतना इनकी बहुलता है कि जिसकी वजह से ये ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा पुरुष का शरीर, ह्यूमन बॉडी जो है वो स्रोतसों के समुदाय के अलावा अतिरिक्त कुछ नहीं है। कुछ इसको काउंटेबल कहते हैं और कुछ इसको अनकाउंटेबल। दैट इज तरीका है क्लासिफिकेशन का कि स्रोतसों का कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, कैसे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है ये परिसंख्य भी हो सकते हैं और अपरिसंख्य भी हो सकते हैं। अगर हम संख्या की दृष्टि से देखें तो ये अपरिसंख्य हैं, और हम अगर इनको क्लासिफाई करें तो फिर इनकी हम परिसंख्या कर सकते हैं। और इसी आधार पर जो है वो आचार्य चरक ने 13 स्रोतसों का जो है वो उदाहरण रूप में एक वर्णन किया, जो मोटे मोटे ग्रॉस रूप में, स्थूल स्वरूप में वर्णन किया। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं ग्रॉस लेवल पर स्रोतस में ये आचार्य चरक ने जो 13 मेन मेन स्रोतसों का वर्णन किया। बाकी थोड़ी जगह पे जो है हमको मनोवा स्रोतस का भी वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा जो है अलग अलग जैसे स्वेदवह स्रोतस का भी वर्णन प्राप्त हो जाता है। वहीं आचार्य सुश्रुत ने केवल जो है वो 11 पेयर स्रोतसों का वर्णन किया है। इन स्रोतसों में अगर हम देखें तो कुछ जो है वो 7 टिश्यू, जो 7 हमारी सप्त धातु हैं, उनके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हैं। कुछ जो है वो मलों से रिलेटेड हैं। कुछ जो है वो डाइजेशन से रिलेटेड। अगेन हम वापस आते हैं कि जो हमारा ये पूरा स्रोतसों का है, तो सभी आचार्य जो है भिन्न भिन्न मूर्तिमंत भावों की उत्पत्ति, अभिभवन के लिए पृथक पृथक स्रोतसों की बात करते हैं। और अष्टांग हृदय का एक श्लोक है जिसमें ये रस्य उपचय की बात कर रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे
यहाँ पर एक श्लोक दिया हुआ था अष्टांग हृदय का, जिसमें रस्य उपचय की बात हुई है कि रस से जो है वृद्धि होती है, रस से उपचय होता है। ठीक इसी प्रकार आचार्य चरक कहते हैं कि यावंत पुरुषे मूर्तिमंत भाव विशेषा तावंत एव अस्मिन् स्रोतसाम प्रकार विशेषा। ये स्रोतसों की संख्या के बारे में बात हो गई, इनके टाइप्स के बारे में बात हो गई। इसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो साइज और फंक्शन के आधार पे क्लासिफिकेशन की बात है कि भाई स्रोतस जो हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, सूक्ष्म या अणु, अथवा स्थूल या ग्रॉस। ये दो प्रकार के स्रोतस हो सकते हैं। ये जब हम बात करते हैं सेलुलर लेवल पे तो वो सूक्ष्म स्रोतसों की बात करते हैं, और जब हम बात करते हैं स्थूल लेवल पे या ऑर्गन लेवल पे, सिस्टम लेवल पे, तो वहां पर वो स्थूल हो जाते हैं। यानी कि सेलुलर लेवल पे जो सूक्ष्म स्रोतस हैं वो हमको दिखाई नहीं देते, बट जो जब हम ऑर्गन लेवल पे बात करते हैं तो वहां पर जो स्थूल स्रोतस हैं वो हमको प्रॉपर दिखाई देते हैं। दूसरा अगर हम टाइप बात करें तो अगर हम स्रोतस की ओपनिंग की बात करें तो ये बहिर्मुख हो सकते हैं और ये अंतर्मुख हो सकते हैं। दो प्रकार के अगेन ये हो सकते हैं। बहिर्मुख स्रोतस वो हैं जिनकी ओपनिंग जो है वो शरीर से बाहर की तरफ है। ये जो है वो मेल्स में 9 बताए हुए हैं, और आचार्य सुश्रुत ने जो है इनको फीमेल्स में 11 बताया हुआ है, मेल्स में 9 बताया हुआ है। वहीं अंतर्मुख स्रोतसों की बात करें, यानी जिनकी ओपनिंग जो है वो शरीर के भीतर की तरफ है, शरीर के अंतर है, उन्हीं अंतर्मुख स्रोतसों की हमने यहाँ पर आगे चर्चा करनी है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि स्रोतसों के यहाँ टाइप हो गए, यहाँ हमने बात कर ली। इनके आगे हम बात करना है मूल की, कि स्रोतसों के मूल। तो इससे पहले हम यहाँ एक बार स्ट्रक्चर की बात कर लें कि स्रोतसों का जो है वो स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पर इस श्लोक में क्लियर बता दिया हुआ है कि स्वधातु संवर्णानि वृत्त स्थूल न्यूनानि च स्वतांश दीर्घान्यकृत्य प्रतान सदृश अनिच। अर्थात जो है स्रोतस जो है वो सर्कुलर हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, स्थूल हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, दीर्घ हो सकते हैं यानी लॉन्ग हो सकते हैं, और प्रतान लाइक स्ट्रक्चर के हो सकते हैं। ये इनका शेप हो गया। साइज की बात करें तो अगेन वही अणु और स्थूल हो गया। लेकिन अगर इनके शेप की बात करें तो 3 प्रकार के शेप जो है वो हमको ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं, सर्कुलर, सिलेंड्रिकल, या फिर हमको लॉन्ग या प्रताप। ये वाले जो शेप हैं वो हमको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कलर की बात करें तो यहाँ पर कहना है इनका कि स्वधातु समवर्णानि, जिस प्रकार की धातु का वो अभिवहन करेंगे सेम उसी प्रकार का जो है उनका कलर होगा, या फिर जो है जो धातु उनके अंदर उपस्थित है उसी टाइप का उनका कलर होगा। तो स्ट्रक्चर में हमको ये यहाँ पे इनका कलर भी हो गया, इनकी आकृति हो गई। इसके बाद यदि इन सभी तथ्यों को एक दृष्टि से देखें तो स्रोतस शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित है, अथवा शरीर स्रोतसों, विभिन्न प्रकार के स्रोतसों का समुदाय मात्र है। शरीर में जितने भी मूर्तिमंत भाव हैं, अर्थात जिनकी कोई विशेष आकृति स्वरूप है, वे सभी मूर्तिमंत भाव किसी न किसी स्रोतस से उत्पन्न हो रहे हैं। और ये स्रोतस छोटे भी हो सकते हैं यानी सेलुलर लेवल पे, और बड़े भी हो सकते हैं यथा महास्रोतस, जैसे पूरा वोल एलिमेंट्री कैनाल, हृदय एटसेट्रा, मीन्स ऑर्गन लेवल पे। ये स्रोतसों का मुख जो है वो शरीर के बाहर की तरफ भी हो सकता है, अंदर की तरफ भी हो सकता है। उसके आधार पे जो है ये बहिर्मुख और अंतर्मुख हो सकते हैं। इनमें से कुछ जो है वो इनपुट के आधार पे हैं, यानी कि शरीर के अंदर जो हम आहार ग्रहण करते हैं, जैसे प्राण के रूप में, प्राणवायु के रूप में हम लेते हैं, अन्न के रूप में हम आहार लेते हैं, उदक के रूप में हम आहार लेते हैं, ज्ञान के रूप में ज्ञान व स्रोतसों का भी वर्णन प्राप्त होता है। आउटपुट में अगर देखें तो हम जैसे मल वह स्रोतसों का जो वर्णन है, जैसे पुरीष वह स्रोतस, मूत्र वह स्रोतस, स्वेद वह स्रोतस, जो ये शरीर से बाहर की तरफ जो निकलते हैं, तो ये इनपुट और आउटपुट के आधार पे जो है स्रोतस हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो बाकी के जो शेष 7 स्रोतस हैं वो सप्त धातुगत स्रोतस हो गए। रसभ स्रोतस,
रक्तवह स्रोतस, मांसवह, मेदवह, अस्थिवह, मज्जावह और शुक्रवह स्रोतस। इसके बाद बात करते हैं, यानी सोतस का जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों लेवल पर है। एक सेलुलर लेवल पे भी सोतस की बात होती है और ऑर्गन लेवल पे या सिस्टम लेवल पे भी बात होती है। जब हम स्रोतस सेलुलर लेवल पे बात करते हैं स्रोतस की, तो वहां पर हमको मूल की उतनी ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती है। परंतु जब हम ऑर्गन लेवल पे बात करते हैं, सिस्टम लेवल पे बात करते हैं, तो हमको उस स्रोतस के मूल की भी बात करना पड़ता है या देखना पड़ता है। तो सेलुलर लेवल पर स्रोतस का मूल और उसका ट्रैक्ट अत्यंत सूक्ष्म है, इसीलिए उतना ज्यादा वो चर्चा में नहीं आता है या उतना वर्णन उसका प्राप्त नहीं होता है। परंतु ऑर्गन लेवल पर जब स्रोतस का पूरा ट्रैक हमको दिखाई देता है, दृष्टिगोचर है, तो आचार्यों ने जो है इसीलिए स्रोतसों के मूलों का वर्णन उद्देश्य सहित किया है। यथा आचार्य सुश्रुत ने शल्य तंत्र के अनुसार स्रोतसों का स्थूल के मूलों का वर्णन किया है, जैसे अ, तो स्थानिक वेदना है या स्थान विशेष के अनुसार। और जबकि आचार्य चरक ने जो है वो काय चिकित्सा अथवा निज रोगों के दोषों के अनुसार वर्णन किया है। ये एक स्लाइड है जिसमें आप देख सकते हैं। शल्य तंत्र के अधिकारिषु नियत देश स्थितेषु विद्येषु वेदना विशेषस्य साध्यादि ज्ञान निश्चयात्मक त्वमिति काय चिकित्सा अधिकारी कृतश्न शरीर गतत्वेन। ये यहाँ पर शल्य तंत्र की बात हुआ। नियत देश में स्थित विद्ध वाली वेदना के वर्णन के लिए जो है इन्होंने आचार्य सुश्रुत ने 11 पेयर्स के मूल की बात की। जबकि जो आचार्य चरक हैं उन्होंने निज रोगों के दोष दूष से समूर्छना को समझने के लिए कृतश्न शरीर के लेवल पे या सर्वगत शरीर के सर्वगत लेवल पे जो है इसका वर्णन, मूलों का वर्णन किया है। आगे हम देखते हैं इसमें, तो इनके मूलों में इसीलिए दोनों आचार्यों के मूलों में जो है अलग अलग वर्णन में भिन्नता प्राप्त होती है। यहाँ पर आगे हम देख रहे हैं कि जो 11 पेयर्स, तो वो आचार्य सुश्रुत ने इनका वर्णन पेयर्स में भी किया है, जबकि बाकी अन्य आचार्यों ने इनका वर्णन पेयर में नहीं किया है। संभवतः इसका एक कारण यह है कि अगर हम शरीर में ज्यादातर ऑर्गन लेवल पर ध्यान दें, तो या तो ज्यादातर ऑर्गन पेयर्स में है या फिर जो है उनकी संरचना सिमेट्रिकल है, जो राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में डिवाइड हो सकती है। इसलिए भी शायद इसी चीज को इंगित करने के लिए इन्होंने इसको 11 पेयर में जो है स्रोतसों का वर्णन किया है। हालांकि जो है ये विषय जो है वो अत्यंत गूढ़ है, विशद है, और कम समय में जो है अथवा प्रत्यक्ष कर्माभ्यास के बिना इसे पूरी तरह से समझ पाना बड़ा ही कठिन है। परंतु फिर भी वर्तमान युग में हमको इसको प्रॉपर जो है वो समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इसको प्रॉपर नहीं समझेंगे, जब तक हम सोतस के कंसेप्ट को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक जो है हम सोतसों की दृष्टि से शरीर को नहीं देख पाएंगे और इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को या इसके पैथोलॉजिकल दृष्टि को उतना अच्छे तरीके से हम नहीं समझ सकते। एक बार हम जो है सोतसों के मूलों पर निगाह डालें तो इसमें ऑर्गन लेवल हमको क्लियरली दिखाई देता है। जैसे प्राणवह स्रोतस के मूल में हृदय और महास्रोतस की बात हुई है, वहीं पर आचार्य सुश्रुत ने हृदय और रसवाही धमनी की बात की है। उदगभव स्रोतस में जहां आचार्य चरक ने तालु और क्लोम को इनका मूल बताया है, वहीं पर आचार्य सुश्रुत ने तालु और क्लोम सेम माना है। अन्नभाव में कुछ कुछ डिफरेंस हैं, जैसे अन्नभाव में आमाशय और वाम पार्श्व आचार्य चरक ने माना, बट आचार्य सुश्रुत ने आमाशय और अन्नवह धमनी कह के उसको जो है आगे छोड़ दिया। ऐसे ही रसवस स्रोतस में देखेंगे तो हृदय और दस धमनी की बात हुई है, आचार्य सुश्रुत ने उसको हृदय और रसवाही धमनियों के रूप में स्पष्ट किया। रक्तवस स्रोतस में देखेंगे तो प्लीहा और यकृत इसके मूल बताए आचार्य चरक ने, जबकि आचार्य सुश्रुत ने प्लीहा यकृत के साथ में रक्तवाही धमनियां भी इसमें मूल में ऐड कर दी। मांसवास स्रोतस में अगर हम देखें तो स्नायु और त्वचा
ये जो है इसके मूल बताए आचार्य चरक ने, जबकि आचार्य सुश्रुत ने स्नायु और त्वचा के अलावा रक्त वह धमनियां भी इसके मूल में जोड़ दी हैं। मेद वह में अगर हम देखें तो ब्रक, ओमेंटम और मास, ये अष्टांग संग्रह ने जो है इसके मूल दिए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें आचार्य सुश्रुत ने, तो सुश्रुत ने कटी और ब्रक ऐसे करके जो है वो मेदवह सोतस के मूल वर्णन किए हैं। अस्थि, मज्जा और जो है स्वेद वह, ये तीन स्रोतों का वर्णन जो है वो आचार्य सुश्रुत ने नहीं किया है, क्योंकि एक तो ये तीनों ही जो है वो मेद धातु से ही उत्पन्न होते हैं, और दूसरा जो है इनका विद्ध लक्षण जो है वो इतने ज्यादा स्पष्ट नहीं है, या इनका विद्ध लक्षणों का स्पष्ट वर्णन नहीं हो सकता, इसीलिए जो है आचार्य सुश्रुत ने इनका वर्णन नहीं किया है। आगे अगर हम देखें तो शुक्रवाह स्रोतस की बात है, जहां पर ब्रसड़ और आ, सेफ की बात हुई है, और आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पर स्तन और वृषण, यानी स्तन को इनने मूल में माना। संभवतः में भी ये एक रेफरेंस हो सकता है, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि स्त्रियों में भी शुक्र धातु होती है, क्योंकि स्त्रियों में शुक्र धातु के लिए और कोई दूसरा रेफरेंस इतनी आसानी से नहीं मिलता है। बट यहाँ शुक्र व सोतस के मूल में स्तन को रख के आचार्य सुश्रुत ने कहीं ना कहीं एक लिंक हमको प्रोवाइड की है कि शुक्रवार स्रोतस में ये हो सकता है। आगे हम देखेंगे आर्तपा स्रोतस का वर्णन जो है वो आचार्य सुश्रुत ने किया है, जिसमें गर्भाशय और आर्तवयी धमनियों का वर्णन किया। मूत्रवा स्रोतसों में हम देखें तो यूरिनरी ब्लैडर या बस्ती का जो है वर्णन है, साथ में जो है वो बंछड़ बोला है आचार्य चरक ने, जबकि आचार्य सुश्रुत ने जो है वो मेड पीनाइल यूरेथ्रा वाले पोर्शन को जो है इन्होंने माना है। पुरीस्बस स्रोतस में हम देखें तो पक्वाशय, स्थूलगुद, इनको माना है, जबकि यहाँ पर देखें तो इन्होंने केवल गुद लिख के एनस लिख के जो है मान लिया है मूल। तो ये अलग अलग जो है वो मूलों का जो वर्णन हमको प्राप्त होता है, वो कहीं ना कहीं एक तो अकॉर्डिंग टू सर्जरी और अकॉर्डिंग टू मेडिसिन या काय चिकित्सा के अकॉर्डिंग जो है इनका वर्णन डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ज्यादातर चीजों में जो सुश्रुत जो हैं, जैसे इन एडिशन टू दीज ग्रॉस मटेरियल चैनल्स या स्थूल स्रोतों के वर्णन के अलावा मनोवा स्रोतस का भी हमको जो है एक रेफरेंस प्राप्त होता है उन्माद चिकित्सा में, चरक चिकित्सा अध्याय 9 में। तो हम कह सकते हैं कि मनोवा स्रोतस भी आचार्य चरक ने वर्णन किए हैं। इसके अलावा नो सेपरेट स्रोतस हैव बीन डिस्क्राइब फॉर थ्री शारीरिक दोष, दे परवेड द एंटायर बॉडी एंड मूव थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्रोतस, यानी बातवह स्रोतस, पित्तवह स्रोतस, कब्बह स्रोतस, इनकी चर्चा जो है वो नहीं हुई है। इसकी बजाय उन्होंने ये कहा है कि जितने भी शरीर में स्रोतस हैं उन सभी में जो है बात, पित्त, कफ जो है ये मूव कर सकते हैं, ये तीनों जो है गमन करते हैं। Sushruta has excluded Dhamni and Sira from the purview of Sotas. अगेन रिपीट हो गया है कि धमनी में जो हमने धमानात की बात की थी, यानी पल्सेशन की बात की थी, सिरा के अंदर हमने सरड़ की बात की थी, और सोतांशी के अंदर हमने ऊजिंग की या ऊज आउट की बात की थी। तो ज्यादातर चीजें जो है सोतस कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाती हैं, और जितना अच्छे से हम स्रोतस को समझ लेंगे उतना अच्छे से हम फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि फिजियोलॉजी में स्रोतस का रोल क्या है, अथवा पैथोलॉजी में स्रोतस का रोल क्या है। थैंक यू। थैंक यू सर। जी मैम, बाकी अभी अगर कोई क्वेश्चंस हो तो मैम पूछ सकते यस, हैं। अगर किसी को क्वेश्चंस कुछ है तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, या फिर आपका माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं।
Yes, queries are welcome now. सर एक क्वेश्चन है, स्रोतो अवरोध का अर्थ पूछ रहे हैं। जी मैम, स्रोतस में अवरोध जो है वो स्रोतस दोस्ती के 4 टाइप्स बताए हुए हैं, है ना। उसमें से एक संघ जो है वो बताया गया है, संघ या ऑब्स्ट्रक्शन। स्रोतसों में अवरोध जो है वो वात पित्त कफ, ये जो 3 दोष है ये गमन करते हैं। ये दोष जो जो भी स्रोतस के अंदर जो भी धातु का वहन हो रहा है, जो भी धातु उसमें उसके अंदर उपस्थित है, उस धातु को पहले दूषित करते हैं। और वो धातु वहां उस स्थान पर, जिस स्थान पर भी जो है दूषित होके और जो है ऑब्स्ट्रक्शन करेगी, संग करेगी, वो वहां पर खब एक्यूटी कर लेगी और दोषों की जो है उस स्थान पर दुष्टि हो जाएगी। जी। थैंक यू सर। नेक्स्ट। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अभी वैद्य संतोष जी कटने सर, सचिव आरोग्य भारती पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक, सीनेट सदस्य तथा स्थायी समिति सदस्य, संतोष सर से मैं विनती करना चाहूंगी कि सर समापन करें। ओवर टू यू सर। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। आज के हमारे व्याख्याता डॉक्टर सुनील कुमार पराशर जी और आरोग्य भारती के देवगिरी प्रांत के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रकाश जी सिगेदार जी तथा आरोग्य भारती के प्रांत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन आयाम के प्रमुख डॉक्टर मनोज चौधरी, डॉक्टर देवदत्त देशमुख और इस व्याख्यान माला के आयुर्वेदाभ्यसनम के सारे आयोजक जैसे कि डॉक्टर कुंबारे मैडम, डॉक्टर राहुल गौड़ी, डॉक्टर प्राजक्ता पटेल और पूरी टीम को इसके आयोजन के लिए और यशस्वी करने के लिए हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज के अपने उद्घाटक के रूप में जो प्राप्त हुए, इसमें हमारा जो सौभाग्य है वो है डॉक्टर सिगेदार जी। बेसिकली एलोपैथी के डॉक्टर होते हुए भी आयुर्वेद के प्रति रुचि, अपनापन होने के कारण वो उद्घाटन में आए और हमें मार्गदर्शन पर 2 शब्द कहे। आरोग्य भारती होलिस्टिक अप्रोच लेकर चलने वाली, सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली संगठना है जिसमें सारे पैथी के डॉक्टर्स और नॉन मेडिको भी काम करते हैं और दूसरे पैथियों का पूरा सम्मान करते हैं। बाह्य किसी संगठनों में देखा जाए या समाज में देखा जाए, देखा जाता है एक तो दूसरे पैथी के बारे में हम दोषारोप करते हैं, कमियां निकालते हैं और खुद की पैथी को दूसरों को दोष देते हुए अच्छा बतलाते हैं। ऐसा न करते हुए क्रॉस पैथी हो या और कुछ हो, ऐसा कुछ न करते हुए हम दूसरे शास्त्रों का सम्मान करते हुए उस शास्त्रों में रुचि बढ़ाए, उस शास्त्रों का, तंत्रों का अवलोकन करें। इसीलिए शास्त्र कहते हैं
परतंत्रावलोकनम, ये करने की अनुमति है। तो करने में क्या है, तो कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इस दृष्टि से होलिस्टिक अप्रोच लेकर, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर आरोग्य भारती काम करता है। इसीलिए हमें उद्घाटक के तौर पर डॉक्टर प्रकाश सिगेदार जैसे एलोपैथिक डॉक्टर जो मान्यवर है, अग्रगण्य है, वैसे प्राप्त होते हैं। उदाहरण स्वरूप आज के डॉक्टर है, वैसे भी उद्घाटक के स्वरूप पर इस व्याख्यान माला में आयुर्वेदाभ्यसनम में विविध क्षेत्रों से प्रैक्टिशनर्स आए हैं। नॉन मेडिको है जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आरोग्य की भूमिका लेकर समाज की सेवा कर रहे हैं। हम सभी का भाग्य है कि ऐसे सारे महानुभाव हमें प्राप्त है, जो हमें आदर्शवत है, जो किसी का द्वेष सिखाते नहीं है और विशुद्ध मन से अपने शास्त्र के द्वारा आरोग्य के माध्यम से समाज की सेवा के लिए सारे उद्यत है। आप सभी को एक आह्वान है कि आप सब इसी मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर अपना प्रचलन शुरू करें। इस आह्वान के साथ मैं मेरा आज का कथन पूरा करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर योर इंस्पिरेशनल वर्ड्स। एक लास्ट क्वेरी है सर, डॉक्टर सुनील कुमार सर, any different perspective we to develop Strotus and modern anatomy physiology correlation? Sir, sir, please unmute yourself. जी मैम। हाँ, yes sir. फिजियोलॉजी के लिए जो है स्रोतस का जो है वो डिटेल इतना ज़्यादा संहिताओं में प्राप्त नहीं होता। हालांकि जो है रिसर्चेज जो है इसके ऊपर चल रही हैं, और जगह जगह पे जो है बिखरे हुए जो रेफरेंसेस हैं उन सारे रेफरेंसेस को कलेक्ट करके और हमको जो है इसको एक जगह लाना पड़ेगा, ताकि हम अपनी जितनी भी क्रिया शरीर की जितनी भी सिस्टम वाइज जो है प्रोसेसेस हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें स्रोतस के लेवल पे। हालांकि काफी कुछ जो है इसमें हो चुका है, काफी चीजें जो है वो स्रोतस के लेवल पे समझाई जा सकती हैं। और मॉडर्न से इसको कोरिलेशन की बात है तो मॉडर्न काफी कुछ कोरिलेट हो चुका है। नई बुक्स जो आप देख रहे हैं उनमें ज्यादातर चीजें जो है वो स्रोतों के साथ जो है प्रॉपर कोरिलेट होके ही दी है। जी मैम। Yes sir, thank you. आरोग्य भारती पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत की सभी टीम से मैं सभी उपस्थित विद्यार्थियों और सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सुनील सर। और आगे कार्यक्रम समाप्ति में हम शांति मंत्र करेंगे। ओवर टू यू किशोरी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। थैंक यू मैम।